Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, in the previous lecture we started revision of chapter number 6 square and square roots, and we have done topics 6.2, 6.3 and 6.4, that is properties of square numbers, interesting patterns of square numbers, and how to find square of a number using shortcut methods. Today we shall cover the next topics, that is how to find square root of a number using two methods. First is prime factorization method and second is division method. After that we shall study the last topic, estimating square roots, and we'll complete the revision of chapter number 6 today. So let's start. The very first topic is how to find out the square root of a number using prime factorization. This is very important topic and extremely useful in this chapter as well as in the next chapter. What is actually prime factorization? Prime factorization is the process of writing a number as a product of its prime. किसी भी नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स है, जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड दैट इज हेंस कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर. वी ऑल्सो यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मैथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. हम लॉन्ग डिवीज़न मैथड को भी यूज़ करते हैं. दोनों ही मेथड्स इस चैप्टर में रिवाइज करवाए जाएंगे. So what is the first step? First of all, you have to perform the factorization by finding which prime factors you will use to do the prime factorization. जैसे आपके सामने 144 एक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व की गई है. I want to make it clear that what are prime numbers. Prime numbers are those numbers which are only divisible by itself, जो कि अपने ही टेबल पे डिविजिबल होते हैं, या फिर वन के भी कह सकते हो. वन के टेबल पे तो सब डिविजिबल होते हैं. तो शॉर्टकट मेथड क्या है लर्न करने का? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन. ओके, तो कम से कम 50 तक के प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए. Here you can see we have done the prime factorization. कैसे? First of all we know that 2 is the prime factor of 144. 2 के टेबल पे 144 डिविजिबल है. कौन से नंबर पे? 72 पे. 2 72s are 144. Now first step is done. Again we know that 72 is divisible by 2, so we'll again take 2, that is 236 are 72. Again 36 is divisible by 2, so we'll write again 2, that is 2 18s are 36. Again we know 18 is divisible by 2, we shall again take 2 and we will write 2 9s are 18. अब आप देख सकते हो कि 9 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो आप उससे नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर लो. अगर नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर भी डिविजिबल नहीं होता तो उससे नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर. But 3 divides 9, so 3 3s are 9. Again 3 is divisible by 3, so the last step would be 3 1s are 3. बेटा आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास एंड वाला नंबर 1 ना आ जाए, और ये बॉक्स हमेशा आपके पास वेकेंट रहेगा. ओके, बिकॉज डायगनली चलोगे आप ऐसे, राइट? This is the first step. The next step is you have to write this product as a product of primes. तो जितने भी प्राइम्स यहाँ पे आए हैं सबको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लोगे. जैसे यहाँ पे 4 2 टाइम्स आया और 3 भी 4 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 3 आया है. सो यू विल राइट इट एज इट इज़ शोन हियर. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डू पेयरिंग. आपने क्या करनी है? पेयरिंग करनी है. पेयरिंग कैसे करोगे? पेयरिंग के लिए बेटा आप 2 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे दी हुई है. ठीक है जी, 2 2 एंड 3. और जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे और
इसके ऊपर भी आप ऐसे स्क्वायर रूट लगा सकते हो, 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3. So 2, 2, 3. Okay. Then you will take one member from each group, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So it is 2 2s are 4, 4 3s are 12. So the square root of 144 will be 12. Okay. Here you can see it is written here, the square root of 144 is 12. Hence by prime factorization we can find square root of a number. एक चीज़ बेटा आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है. अब जैसे 144 है, ये तो 4 के टेबल पे भी डिविजिबल है, ठीक है ना. लाइक 144, then 4 3s are 12, 4 6s are 24. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे. तो बेटा ये गलत है, आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही सिलेक्ट करने हैं. The next method to find out square root is using division method. Now we shall recap which steps we need to follow to understand this method. इस मेथड को हम कैसे परफॉर्म करते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है place a bar over every pair of digits in the dividend starting from the ones place. आपने बैक साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है और आपने 2 मेंबर्स की ग्रुपिंग करनी है. जैसे यहाँ पे 96 की ग्रुपिंग हो गई है और उसके बाद मेरे पास बच गया था 40 40, तो 40 की ग्रुपिंग हो गई है. इस केस में ठीक है, सबसे लेफ्ट वाले केस में अगर आपके पास 1 डिजिट नंबर भी बच जाता है तो भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे एज इट इज़ राइट डाउन करोगे. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू find the largest number whose square is less than or equal to the pair on the extreme left. अब आपने क्या करना है, आपने इस पेयर को देखते हुए यहाँ पे डिवाइज़र ऑफ कोशेंट सिलेक्ट करनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो इसमें है कि फर्स्ट स्टेप पे जो डिवाइज़र सिलेक्ट होता है वो स्क्वायर नंबर सिलेक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 सिलेक्ट कर रहे हो तो 2 इंटू 2, अगर 3 तो 3 इंटू 3, दैट इज़ 9, 4 इंटू 4 16. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्वायर नंबर्स कौन से लिए गए हैं, 5 6 एंड 7. 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49 है, जो कि क्रॉस कर गया 40 को. तो हम कौन सा स्क्वायर नंबर लेंगे, 36. हैंस द डिवाइज़र एंड द कोशेंट विल बी 6, दैट इज़ 6 6 आर 36. ऐसे दोनों प्लेसेस पे आपने सेम नंबर ही लेना है. Now you can see we have selected quotient and divisor same. The next step would be to find out the remainder. Now what is the remainder left? That is 4. Now next step, step number 3. Bring down the next pair to the right of this remainder. जो भी नेक्स्ट पेयर है उसको आपने नीचे रिमाइंडर के साथ लेके आना है. अगर रिमाइंडर 0 है तो आप एज इट इज़ लिख दोगे. ओके, then the next step is double the quotient and enter it with a blank on the right hand side. ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अब हमने सेकंड स्टेप के लिए इसके बाद जब एक लाइन लग गई तो एक स्टेप हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. अब स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू सेलेक्ट अ डिवाइज़र टेकिंग हेल्प ऑफ द प्रीवियस क्वोशिएंट. प्रीवियस क्वोशिएंट कौन सा आया है, 6. जो भी क्वोशिएंट प्रीवियसली आएगा आपने उस क्वोशिएंट का क्या करना है, डबल. यू हैव टू डबल दैट क्वोशिएंट, दैट इज़ 12. और उसके साथ एक ब्लैंक छोड़ देनी है जिसमें आप नंबर्स फिल करोगे, जैसे कि 0 1 2 3 अप टू 9. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 नंबर फिल हुआ है. कैसे, उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो. सिलेक्ट द लार्जेस्ट डिजिट फॉर द ब्लैंक एंड द क्वोशिएंट सच दैट when divisor is multiplied by quotient the product is less than or equal to the new dividend. Now new dividend is 496 and the new quotient is made
by adding 4 to the right of 12। यहाँ पे देखो 12 था तो 1 लगाया तो 1 के साथ ही आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 लगाया तो 2 के साथ ही करोगे, 3 लगाया तो 3 के साथ ही करोगे, 4 लगाया है तो 4 के साथ ही करोगे। दैट इज़ 124 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स यू 496, हैंस 4 इज़ द सूटेबल ऑप्शन, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिए। 124 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स यू 496, हैंस कंप्लीटिंग द solution। You can see the remainder is 0, that is 64 is the exact answer, or you can say the square root of 4096 is 64। So if again further there is a pair, you will continue the previous 2-3 steps and you will find out the square root of the given number। Now the next topic is, let's learn how to estimate the square root of a number। किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। Here is a question given to you in front of you, we'll take example of this। Estimate the square root of 425। आपने फाइंड आउट करना है कि 425 अप्रॉक्सीमेटली किसके स्क्वायर रूट के नज़दीक आता है। आंसर में ये एग्जैक्ट भी आ सकता है और नियर बाय भी आ सकता है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? स्टेप 1, आइडेंटिफाई 2 स्क्वायर नंबर्स बिटवीन विच द गिवन नंबर्स लाइज। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं जिसके बीच ये नंबर लाई करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है 250 लाइज बिटवीन 100 एंड 400। अब 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर, ओके, और 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये नंबर किसके बीच लाई करेगा? 10 to 20 के स्क्वायर के बीच। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स इन रेंज। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि इस रेंज में सबसे नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। दैट इज़ 400 लाइज बिटवीन 425 लाइज बिटवीन 400 एंड 625। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? स्टेप 1 से। स्टेप 1 में तो देखो बेटा इन्होंने 250 एग्जाम्पल ली थी, बट हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है? 425। तो हम ये जजमेंट लगाएंगे कि ऐसे ही 425 कौन से नंबर में लाई करता है। 425 लाई करता है 400 में और 625 में। अब लाई तो 400 से 500 में भी करता है, लेकिन मैंने वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये लाई करता है। अब 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। दैट मीन्स स्क्वायर रूट से 425 का किसके बिटवीन आएगा? 20 से 25 के बिटवीन। ओके, नाउ 20 स्क्वायर इज 400 and 21 square is 441। So the step 3 will be find the approximate square root by choosing the closest value। तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वाले स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना है? 441, जो कि 425 से छोटा है, ओके, सॉरी बड़ा है, लेकिन 400 जो है 425 से छोटा है। दैट मीन्स नियरेस्ट कौन सा हो गया? 425 के 441 हुआ या 400 हुआ? ऑब्वियसली 441। सो द क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 425 इज 21। You can see here. In this way, you can estimate the square root of a number. So students, following revision guide, today we have revised topic 6.5 square roots and 6.6 square roots of decimals. Both the methods are based on prime factorization and division method, and the last was estimating square roots. Hence, the revision of chapter number 6 is completed. Must revise this chapter from both the books and practice more and more. That's all for today. Happy learning!